Hi, hello students. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss organometallic chemistry chapter. So in the earlier video we already discussed some of the major concepts from the organometallic chemistry, means theoretical part like your metal-metal bonding, then Wade's rule, then isolobal analogy, and apart from that the metal carbonyls back pi bonding. So these are the part I already covered from this concept. So in the today's session we are going to be mainly focus on to the reaction mechanism part from the organometallic chemistry. Now the reaction mechanism, this part from the organometallic chemistry is most important point of your final examination. आप अगर MSc में हो या फिर BSc में हो या फिर either you are going to be attempting any competitive exam like NET, SET, GATE. So in that competitive exam definitely the one question coming from the reaction mechanism part फ्रॉम योर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री. तो नेट एग्जाम में पार्ट सी जो होता है आपका, तो 4 मार्क्स के लिए इस सेशन में से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही है. ठीक है, तो देख लीजिए. अब ये जो यहाँ पर पार्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज बेसिकली देयर आर टोटल 7 रिएक्शंस आर गोइंग टू बी कवर अंडर दी organometallic chemistry. So your first reaction will be oxidative addition reaction, second reductive elimination reaction, third migratory insertion, fourth beta hydrogen transfer reaction, we can say also it is a beta elimination reaction, then alpha elimination reaction, transmetallation reaction, olefin metathesis reaction. Now out of the 7 reaction, the major जो most important जो reaction है जिसके ऊपर most of the time competitive exam में जो questions आते हैं वो आते हैं आपके beta hydrogen transfer and the migratory insertion के ऊपर. Apart from that, these are the also another reaction will be more important like your oxidative addition, reductive addition, alpha elimination. So we are going to be look into it, but in the next video. So today in this video I am going to be only cover the 2 major reaction, that is first your beta elimination reaction and the migratory insertion. Why I am going to be selecting this both the reaction, because organic metallic chapter में से ये 2 reaction mechanism के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में. ठीक है, so now without it wasting our time, we are going to be started with the beta elimination and the migratory insertion reaction. So just take a look. So this is the your first beta elimination reaction. It is also called as what your beta hydrogen transfer. Okay, now as soon as you are going to be looking at the रिएक्शन नेम, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा बीटा को यहाँ पर अगर मैंने स्किप किया तो इसका मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी लर्न द एलिमिनेशन रिएक्शन. आपने देखा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट द E1 एंड द E2. तो ये केमिकल रिएक्शन आपने ऑलरेडी लर्न किया. अब E1 में क्या होता है, फर्स्ट देयर विल बी द वन ऑफ द मेजर लिविंग ग्रुप उसमें होता है, देन वन ऑफ द योर ट्रांसफर ग्रुप जिसमें आप क्या करते हो, पहले तो एक ग्रुप को हटाते हो, देन कार्बोकेटायन और कार्बन आयन जनरेटेड, देन दैट लिविंग ग्रुप विल बी एलिमिनेट एंड देयर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस. E2 में इट इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ द कंसर्टेड मैकेनिज्म, मतलब जिसमें ऐसे कुछ ऐसे मैकेनिज्म था, एक्स होगा यहाँ पे, मानो एच है तो यहाँ पे जाएगा तो एक्स यहाँ से इमीडिएटली रिमूव होगा, तो ये होता है E2, मतलब इट इज अ कंसर्टेड मतलब 1 स्टेप में होता है. ठीक है, इन द सेम वे नाउ दिस E1 एंड E2 व्हेन वी आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल और अप्लाई इन द केस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, तो उस रिएक्शन को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब बीटा का यहाँ पे मतलब क्या है कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मेटल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक, तो यहाँ पे बीटा का जो पोजीशन है हमें चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल. नाउ जस्ट टेक अ लुक, दिस आर द माय जनरल केमिकल रिएक्शन. अब जैसे कि आपने देखा, आप अभी यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, मतलब अब यहाँ पे आपको 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी. एक तो सबसे फर्स्ट कि आपका यहाँ पे कोई तो रिएक्टेंट होगा जो रिएक्ट होगा, देन वाया इंटरमीडिएट यू विल गेट द योर प्रोडक्ट. अभी इसमें जो रिएक्टेंट है, हमें रिएक्टेंट इसमें कौन सा लेना है, हमें वो टाइप का यहाँ पे रिएक्टेंट सिलेक्ट करना है जिसमें आपका बीटा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. हाँ, मीन्स वी हैव टू सिलेक्टेड दोज रिएक्टेंट इन विच योर बीटा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. ओके, सो दैट इज योर रिएक्टेंट. अब इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी. सो वाया इंटरमीडिएट यू विल गेट द प्रोडक्ट. नाउ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, द फॉर्मेशन ऑफ द ओलिफिन टेक प्लेस. व्हाट आई एम सेइंग, द फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन विल बी टेकिंग प्लेस. ओलिफिन का मतलब है यहाँ पे हमें अल्केन मिलेगा, मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड मिलेगा. सो सी दीज आर माई जनरल रिएक्शन. अब यहाँ पर आप लोग देखते हो तो ये मेरा क्या है, अल्केन है, देखो बॉन्ड है. अब देख लो ये मेटल है, तो मैंने क्या बोला था आपको बीटा पोजीशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू मेटल, तो ये हुआ मेरा अल्फा, ये हुआ मेरा बीटा. अब बीटा जो है कार्बन यहाँ पर, उसको ये हाइड्रोजन हटा है. सेकेंड थिंग जो यहाँ पे रिएक्शंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको याद रखना वो ये कि मेटल एंड हाइड्रोजन की जो पोजीशन होगी
आपके रिएक्टर में, दैट शुड बी सीन टू ईच अदर। सीन का मतलब है सीस, मतलब दोनों सामने होने चाहिए, सीन पोजीशन उनका होना चाहिए, तो ये रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट कर सकते। अब इसमें क्या होगा देख लीजिए, बीटा एलिमिनेशन क्यों। अब इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन, दैट विल बी ब्रेक एंड माइग्रेट टूवर्ड्स दी मेटल। देन एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, कार्बन मेटल बॉन्ड विल बी ब्रेकिंग डाउन एंड कमिंग टू ओवर हियर, एंड देन यू विल गेट डबल बॉन्ड ओवर हियर एंड एमएच बॉन्ड विल बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर। अब आप यहाँ पर देखो, दिस विल बी द योर एक्चुअली प्रोडक्ट जो आपको ओलिफिन मिल रहा है। अब यहाँ पे ओलिफिन आप अगर देखो CH2 है ना, तो इट इज इथेन, तो इट इज व्हाट गैस। और आपको ये पता है कि व्हेनेवर द गैसेस आर गोइंग टू बी फॉर्म इनटू द एज अ प्रोडक्ट, तो उस केमिकल रिएक्शन में उसका एंट्रोपी इंक्रीज होता है, बराबर। तो रिएक्शन में जस्ट बिकॉज ऑफ द गैसेस उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ जाता है, एंट्रोपी आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें अब ये एक चीज जो है, अपार्ट फ्रॉम ये पार्ट छोड़ दीजिए, अब इसमें हो क्या रहा है, कौन सी चीजें आपको बीटा एलिमिनेशन में याद रखनी है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो मैंने बोला था आपको दैट मेटल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी सीन टू ईच अदर। सीन का मतलब है सीस पोजीशन होना चाहिए, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हाइड्रोजन जो होगा आपका वो बीटा पोजीशन पे ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड जो बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन यहाँ पे हम लोग स्टडी करें, दिस इज एक्चुअली मोस्ट फेवरेबल इन द केसेस ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मतलब जो आपका रिएक्टेंट होता है, जो भी आपका यहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, जो रिएक्टेंट होगा उसमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन अगर है, तो वहां पर आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोस्ट फेवरेबल, मतलब इजीली हो जाता है। बट सपोज अगर आपको जो रिएक्टेंट प्रोवाइड किया गया है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 18 आता है, तो इन दैट केस बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है। इन दैट केस क्या होगा आपका, पहले डिसोसिएशन विल बी टेकिंग प्लेस। दिस 18 इलेक्ट्रॉन पहले कन्वर्ट होगा 16 इलेक्ट्रॉन में वाया डिसोसिएशन, एंड देन दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द बीटा एलिमिनेशन। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, 16 इलेक्ट्रॉन इजीली विल बी कैरिड आउट, बट 18 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डिसोसिएशन विल बी टेकिंग प्लेस, आफ्टर फॉलोड दैट you will get the beta elimination reaction. And the fifth मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटल एंड कार्बन और मेटल हाइड्रोजन में यहाँ पे ये प्रोडक्ट इजीली क्यों ये रिएक्शन मैकेनिज्म कैरिड आउट हो रहा है, द रीजन इज दैट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इफ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इन द मेटल एंड कार्बन, सो दैट विल बी द हाई। मतलब कार्बन जनरली आपका यहाँ पे होता है 2.1 और समथिंग, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई फेरिक मतलब कोई मेटल पकड़ा तो उसका होता है 1.6, ठीक है, ये है 2.5। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर देखा मेटल एंड हाइड्रोजन में, तो ये होगा इसका 2.1 हाइड्रोजन का, मेटल का होगा 1.6। तो आप अगर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इन दैट केस दैट विल बी द वेरी लेस। सो बिकॉज ऑफ दैट दे फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कंपेरेटिवली मेटल एंड कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, आफ्टर ब्रेकिंग द कार्बन एंड मेटल बॉन्ड, जो यहाँ पे बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है इन बिटवीन द मेटल एंड हाइड्रोजन, दैट विल बी द मोस्ट फेवरेबल बिकॉज वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन वेरी इजीली हम लोग कैरिड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल कंसेप्ट फ्रॉम द बीटा एलिमिनेशन। वन मोर थिंग यहाँ पर जो आपको याद रखनी वो ये कि यहाँ पर जो होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे होगा मेटल का, दैट शुड बी ऑलवेज लोवेस्ट, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये क्यों, जब मैं आपको बताऊंगी रिडक्टिव एलिमिनेशन जब आप स्टडी करोगे ना, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन का एक्चुअली मेजर की पॉइंट है वो ये है कि जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन को स्टडी करते हैं तो उसमें जो मेटल का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है कंपेरेटिवली। जब आप रिडक्टिव एलिमिनेशन जब स्टडी करोगे इसमें जो होता है आपका मेटल, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इनटू दी हाई। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का हाई होना चाहिए कंपेरेटिवली बीटा एलिमेंट। तो ये यहाँ पे एक मेजर की पॉइंट है जो यू शुड रिमेंबर। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये वो एक चीज आपको याद रखनी वो ये कि वॉट एवर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल का यहाँ पर होगा रिएक्टर में, दैट शुड बी रिमेन, मतलब एज सच होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। सो दीज आर द सम ऑफ द मेजर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो ये आई थिंक सो वेरी इजी पॉइंट है। एज सुन एज यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द जनरल केमिकल रिएक्शन, वो आपको याद रह जाएगा कि हमें इसमें से कौन से पॉइंट को रिमेंबर कर रखना है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखो, ये तो हुआ कि बीटा एलिमिनेशन कब पॉसिबल होगा, बट देयर आर द सम ऑफ द रिएक्टर इन विच वी आर गोइंग टू बी प्रिवेंट द बीटा एलिमिनेशन। अब प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि हमें बीटा एलिमिनेशन सपोज नहीं करना है, हमें बीटा एलिमिनेशन के पास जाना ही नहीं है, देन हाउ वी आर गोइंग टू बी प्रिवेंट दैट बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड है जिसमें बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ 2-3 केसेस है वो हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, ये एक आपका थर्ड केस है। तो ये कैसे एग्जांपल है, हाउ यू आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाई दैट विच रिएक्टेंट गिव्स द बीटा एलिमिनेशन और नॉट। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर ये है
कि इफ बीटा कार्बन जो होता है इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज अगर होगा तो वहाँ पे आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज दैट व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, जो बीटा हाइड्रोजन जो आपका होता है बीटा कार्बन का, वो कैसे होना चाहिए, सीन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मेटल, बराबर। बट इफ आई एम गोइंग टू से इनटू द sp हाइब्रिड, अब ये जो मेरा कार्बन है मेरा sp हाइब्रिडाइज है, ट्रिपल बॉन्ड आर देयर, तो ये क्या है आपका एक्चुअली ज्योमेट्री विल बी द लीनियर, सो बॉन्ड विल बी द 180, तो दीज आर द नॉट सीन टू ईच अदर, द मेटल एंड हाइड्रोजन का जो पोजीशन दैट आर नॉट सीन टू ईच अदर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लीनियर ज्योमेट्री एंड द 180 एंगल, these type of compound, this type of the reactant doesn't give the beta elimination reaction. This is the first case. Second case sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब अब इसमें हम लोग क्या स्टूडेंट चेक कर रहे हैं कि योर आपका जो रिएक्टेंट है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन ओलिफिन वहाँ पे आपको फॉर्म हो रहा है, बट मान लो अगर आपके रिएक्टर में ऑलरेडी यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तो इन दैट केस आप अगर देखोगे वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, तो ये जैसे यहाँ पे सीन दिखाए, क्योंकि आप बोलोगे मेटल हाइड्रोजन तो ऑलरेडी सीन ही है यहाँ पर, बट यहाँ पे पॉसिबल इसके लिए नहीं है बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू बी सी इनटू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो इसकी पोजीशन ना कुछ इस तरीके से ऐसे होती है, तो दे आर एग्जैक्टली नॉट सीन, और सीज पोजीशन नहीं होता है। सेकंड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन मैकेनिज्म, सो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री एंड देयर एंगल डिफिकल्टी, यहाँ पे sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज जो होगा आपका बीटा कार्बन, उसमें आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता, सो दीज आर द फर्स्ट केस, तो ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। सेकेंड जो केस है यहाँ पर कि बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट, डेफिनेटली अब हम लोग यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन ही तो स्टडी करें, मतलब क्या बीटा हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन स्टडी करें, तो अगर वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ही एब्सेंट है तो वहाँ पे तो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके कुछ एग्जांपल, मतलब मान लो अगर कोई एक लिगैंड है, जैसे ये मेटल हुआ, इट इज अटैच टू CH2 फिनाइल 4, तो अगर मैंने इसमें से एक को अगर हटा लिया तो टिटेनियम CH2 फिनाइल, तो देख लो ये टिटेनियम मेटल है, ये उसका फर्स्ट अल्फा एंड बीटा कार्बन, तो आप अगर बीटा कार्बन देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही नहीं, मतलब बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो डेफिनेटली ये स्टेबल है, मतलब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा ही नहीं, बराबर। तो वैसे आपको एग्जांपल देखने जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक अभी ये सेकेंड है, ओके, WCH3CF, देन टैंटलम, देन टंगस्टन, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं देन यू शुड इजीली आइडेंटिफाई कि इसमें तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, और अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होने का सवाल होता ही नहीं है, ठीक है। अब जो थर्ड जो केस है वो ये है कि जहाँ पर आपका बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर सीन टू ईच अदर, अब दोनों कंडीशन यहाँ पर वैलिड है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो ओलिफिन जो यहाँ पे अल्किन जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज हाईली अनस्टेबल, इज नॉट स्टेबल, इज नॉट स्टेबल का मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल का मतलब क्या है वो मैं बता रही हूँ। सपोज दिस काइंड ऑफ रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट मिलता है, यहाँ पर मेटल है, तो ये अल्फा और ये यहाँ पे है बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा बीटा, तो मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो रिएक्शन में मान लो ये है इनका इंटरेक्शन। अब देखो स्टूडेंट, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये मेटल और हाइड्रोजन ऐसे जब पोजीशन में होते हैं ना, तो इनमें एक जो वीक जो इंटरेक्शन जो होता है ना, तो इस इंटरेक्शन हमको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन। एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट योर हाइड्रोजन एक्चुअली जो होता है दैट इज गोइंग टू बी प्लेस इन बिटवीन द मेटल कार्बन बॉन्ड, सो इट इज अ फ्लैग इन बिटवीन द मेटल कार्बन बॉन्ड। फ्लैग का मतलब क्या होता है, इट इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ द चेन विल बी टेकिंग प्लेस, तो ये एक चेन की तरह होता है, मतलब जैसे आपका नेकलेस जो होता है ज्वेलरी में, इट इज लाइक ए चेन फॉर्मेशन की तरह होता है। तो इस इंट्रैक्शन को हम लोग, मतलब ये क्या होता है, हाइड्रोजन जो है इट इज एक्चुअली फ्लैग इन बिटवीन द कार्बन मेटल बॉन्ड, तो उस इंट्रैक्शन को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग एगोस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अगर मान लो ये यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन क्रिएट हुआ, तो ये बॉन्ड यहाँ पर गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आया, तो अब जो यहाँ पे ओलिफिन बनेगा वो बॉन्ड कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर बना, बराबर, इन दैट केस। तो अब देख लो यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका, टूवर्ड्स द ब्रिज, ठीक है। तो मैंने अर्लियर वीडियो में आपको बताया था कि एट द ब्रिजिंग प्लेस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन शुडंट बी टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं, जहाँ पर भी आपकी ब्रिजिंग पोजीशन होती है वहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू विच रूल, ब्रेड्स रूल, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन सीन पोजीशन है, एवरीथिंग विल बी कैरिड आउट द कंडीशन, बट स्टिल जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हाईली अनस्टेबल है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन द बीटा एलिमिनेशन विल बी नॉट पॉसिबल इन सच टाइप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब ऐसा ही सेम कंपाउंड यहाँ पर है, बट अभी यहाँ पर क्या है, जो मेटल का जो पोजीशन यहाँ पर सेंटर पर था, अब मेटल का पोजीशन मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब देख लीजिए मेटल लिगैंड है,
और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने ड्यूटेरियम लिया, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन आई एम गोइंग टू बी रिप्लेस विद द ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं चेक करो। ये है मेटल अल्फा, देखो मेटल है यहाँ पर, ये अल्फा, तो बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा बीटा हाइड्रोजन बराबर, तो ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये अगर हाइड्रोजन देखा तो यहाँ पे अगोस्टिक इंटरेक्शन तो है इसमें बराबर, तो ये मेटल यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इस केस में क्या है आपका रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी पॉसिबल। तो ये एग्जांपल में आपको देखना है एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ द मेटल एंड दी व्हाट बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, और इसके प्लेस में आप ड्यूटेरियम को भी रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर, और आइदर हाइड्रोजन। सो बोथ द केसेस आर पॉसिबल। अब सेकेंड यहाँ पे केस देख लो, ये सपोज सच टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर गिवन टू यू, प्लैटिनम 2 PPS3 2 लिगैंड से एंड 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे देख लो, अब ये है मेरा प्लैटिनम मेटल के बाद अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन, बट अब ये जो बीटा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है फ्रॉम बोथ द साइड, दिस इज द अपर साइड, दिस इज द लोवेस्ट साइड, तो बीटा पोजिशन जो है यहाँ पर दैट कैन नॉट बिकम सीन टू द मेटल। अब ये सीन नहीं, क्यों? उसका रीजन क्या है? बिकॉज द रिजिड ज्योमेट्री ऑफ द रिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है 4 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहे हैं। 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी मतलब 90% यहाँ पे एंगल होगा, तो स्ट्रेन विल बी जनरेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजिड ज्योमेट्री जो पोजिशन जो है बीटा हाइड्रोजन का दैट इज नॉट गोइंग टू बी सीन टू द मेटल। तो यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस केस में भी यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म। एंड द लास्ट विल बी क्राइटेरिया, जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये आपको ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि D0 टाइप ऑफ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, D0 मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो D0 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स डजन अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन रैपिडली, ठीक है, डजंट अंडरगो आई सेड, ठीक है, रैपिडली। क्यों? अब देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स है, टिटेनियम रिंग अटैच है। अब ये टिटेनियम मेटल है, यहाँ पर आपका है बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा ये बीटा, तो ये है बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन देखोगे टिटेनियम यहाँ पे 4+ है, टिटेनियम 4+ मतलब इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा यहाँ पे D0। तो आपको पहले तो एज सून एज यू विल गेट द रिएक्टर, तो आपको मेटल का वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। इफ इट इज गोइंग टू बी D0 तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्या करती है, प्रिवेंशन होता है बीटा एलिमिनेशन का, मतलब जिसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। एंड दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन इन विच यू आर टॉकिंग अबाउट द कि जहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होने के चांसेस है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि अगर मुझे बीटा एलिमिनेशन करना है, एंड दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन इन विच योर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शुडंट बी टेक प्लेस। तो ये अब आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ थ्रू आउट द एग्जाम्पल। तो हम लोग 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। नाउ जस्ट टेक अ लुक, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। अब मैं टिटेनियम 4 का फिर से एक रीजन बताती हूँ D0 का। यहाँ पे याद रखो, टिटेनियम 4+ जो है हैज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बैक डोनेशन, क्योंकि यहाँ पे D क्या हो रहा है आपका मेटल का, यहाँ पे क्या हो रहा है D0 हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी द नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बैक डोनेशन इनटू द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एंड H बॉन्ड, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफिकल्टी to break these CH bond, hence beta elimination are going to be difficult, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बाद में वो रिएक्शन फॉर्मेशन के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो वैकेंट ऑर्बिटल वहाँ पे होता ही नहीं। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ एग्जाम्पल। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको कोई 2 एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आप अगर पेट एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, नेट एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, MSc का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। 2 कॉम्प्लेक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन इन A इज ग्रेटर देन B, वाई। अब यहाँ पे पूछा है एक्चुअली रेट ऑफ, आपको पूछा है बीटा एलिमिनेशन का, पूछा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली B से, ठीक है। अब सिंपल रीजन है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था, व्हेन आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू द प्रिवेंशन ऑफ द बीटा एलिमिनेशन। तो देख लो, यहाँ पे मैंने 4 मेंबर का आपको रीजन दिया था। व्हाट इज द रीजन? कि रिजिड ज्योमेट्री है, सीन बीटा हाइड्रोजन, उसकी वजह से पोजिशन होता नहीं है तो रिएक्शन होगा नहीं। तो आप अगर देखोगे ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, प्लैटिनम यहाँ पर भी +2 में है, यहाँ पर भी +2 में। अब यहाँ पर देख लो ये ओपन चेन है, बट यहाँ पे क्या है 5 मेंबर क्या है साइक्लिक रिंग है। तो डेफिनेटली इन द B स्ट्रक्चर B हैज व्हाट रिजिड ज्योमेट्री, तो यहाँ पर क्या है रिजिड ज्योमेट्री।
ठीक है। एंड दैट्स वाई द बीटा हाइड्रोजन जो होगा इसमें से, बिकॉज ये है अल्फा, ये है बीटा पोजिशन, बराबर। सो दैट्स वाई बीटा हाइड्रोजन जो होता है अप्रोचेस टू द मेटल, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रिजिड ज्योमेट्री। सो दैट्स वाई कंपेरेटिवली ए एंड बी में से ए जो होता है इट इज गोइंग टू बी वेरी इजीली गिव टू द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज हैविंग 10⁴ टाइम्स ग्रेटर दैट, ठीक है। तो ये सिंपल रीजन था, तो आपने अटेम्प्ट किया, तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है ए और बी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जो पूछा है कि स्टेबल कौन सा है, अब देख लो दोनों में भी साइक्लिक रिंग है। अगर ऐसे साइक्लिक रिंग के ही कंपाउंड आते हैं, आपको पूछा जाए कि स्टेबल कौन सा है और रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन किस में फेवरेबल है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, अब यहाँ पे क्या है 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। दोनों में अभी हमेशा मैं आपको बोलती कि जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स मिले उसमें पहले सिमिलर पार्ट ढूंढो, उसको सेपरेट करो। अभी ये वाला जो पार्ट है सेम है दोनों केस में, तो अब डिफरेंट किस में, सिर्फ रिंग में। अब यहाँ पर देखो ये 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 साइक्लिक 5 साइक्लिक रिंग। तो इसमें क्या होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है इट इज एक्चुअली स्लोअर इन द केस ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या होगा रेट ऑफ जो बीटा एलिमिनेशन है यहाँ पे क्या होगा आपका स्लोअर होगा, ठीक है। और जहाँ पे आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन जो बीटा जहाँ पे स्लोअर होगा वही आपका कंपाउंड क्या होता है मोर स्टेबल होता है। अब रीजन यहाँ पर क्यों, यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन क्यों आपका स्लोअर हो रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन स्लोअर इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिंग स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ द रिजिड ज्योमेट्री। बट कंपेरेटिवली आप अगर 5 मेंबर देखोगे तो जितना स्ट्रेन आपके साइक्लिक रिंग 4 मेंबर जो साइक्लिक रिंग होता है उसमें जितना स्ट्रेन होता है उतना आपके साइक्लिक जो 5 मेंबर रिंग होती है उसमें नहीं होता। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स द रेट ऑफ द बीटा एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन किस में फास्ट होगा कंपेरेटिवली बी वाले स्ट्रक्चर में, और जहाँ पे रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन फास्ट होगा वहाँ पे वो कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा। सो दैट इज मीन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन स्लोअर दोज कंपाउंड आर विल बी द मोर स्टेबल। सो आउट ऑफ द टू द कंपाउंड ए, okay, so in the A your rate of beta elimination will be slower, so that should be your more stable compound. So this is how you are going to be attempting the question. So ये आपको अप्रोच हमेशा रखना है क्वेश्चन में, सिमिलर पार्ट को पहले अलग कर दो, देन रिमेनिंग जो डिफरेंट पार्ट है उसको आप अप्रोच करो एंड देन आइडेंटिफाइड योर थियोरेटिकल पार्ट उसमें अप्रोच करो एंड देन कमेंट में द आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बीटा एलिमिनेशन। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो पार्ट होता है स्टूडेंट वो है आपका माइग्रेटरी इंसर्शन। मतलब ये दोनों टेक्निक बहुत सिमिलर है, तो इसके लिए मैंने ये दोनों रिएक्शन को एक ही टर्म में लिया। अब माइग्रेटरी इंसर्शन आप देखोगे तो वर्ड में ही आपको पता है माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है, माइग्रेट हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है। इंसर्शन का मतलब क्या हो रहा है, आप किसी तो चीज को आप इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट का मतलब है एडिशन, माइग्रेट का मतलब है ट्रांसफर, इंसर्ट का मतलब है एडिशन। अब इसको दो एक्चुअली टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका 1-to-1 इंसर्शन होगा, एक होगा आपका 1-to इंसर्शन। अब 1-to एंड द 1-1 ये आपको एक्चुअली पोजीशन दिखा रहे बराबर। अब ये पोजीशन किससे है, विथ रिस्पेक्ट टू मेटल, बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक स्टडी कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू मेटल हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज हैप्टिसिटी N1 एंड द N2, ठीक है। अब देख लीजिए सपोज दीज आर द माय एग्जांपल, मेटल है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये यहाँ पे कोई तो आर ग्रुप, आर मीन्स एनी अल्काइल अराइल ग्रुप, यहाँ पर भी मेटल आ रहे और दीज आर द ग्रुप। अब 1-1 इंसर्शन का मतलब देखो यहाँ पे कैसे होगा, मेटल एंड कार्बन, अब दिस ग्रुप विल बी माइग्रेटेड टूवर्ड्स हियर एंड इंसर्ट। माइग्रेट इंसर्शन मतलब क्या, पहले ट्रांसफर होगा देन इंसर्ट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आर बॉन्ड फॉर्म हुआ, देन सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे जनरेट हुआ। तो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, ये जो माइग्रेट हो रहा है, ये कहाँ से, ये वाला 1 पोजीशन, ये वाला फर्स्ट पोजीशन इसका, तो ये क्या हो रहा है 1-to-1 जा रहा है ना, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं 1-1 इंसर्शन। अब 1-to इंसर्शन देख लो, मेटल आ रहे, अब ये 2 पोजीशन है डबल बॉन्ड, तो ये इस कार्बन के पास भी जा सकता है या फिर इस कार्बन के पास भी जा सकता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू बी शोइंग दिस टाइप ऑफ पोजीशन। तो अब देख लीजिए माइग्रेशन 1 CH2, अब ये गया ये वाले CH2 के पास, तो आर पोजीशन। अब देख लो विथ रिस्पेक्ट टू मेटल, ये है दोनों कल्किन का 1-2, ये है मेटल 1, तो गया कहाँ पर, यहाँ पर, तो पोजीशन देखो 1-2 बराबर। तो यह हुआ आपका 1-to इंसर्शन। तो ऐसे माइग्रेटरी इंसर्शन के 2 टाइप है जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि माइग्रेटरी जो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे जा रहा है आपके दिस रिएक्टेंट के टूवर्ड्स। अब देख लो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जनरल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म पहले समझते हैं हम लोग। एम है, यहाँ पे कोई तो वाई ग्रुप है, यहाँ पे कोई तो एक्स ग्रुप है। अब यहाँ पे देख लो हमेशा जो ना ट्रांजिशन जो स्टेट होता है ना, इट इज लाइक अ साइक्लोप्रोपेन, जो 3 मेंबर जो रिंग होता है ना, वैसे कुछ तो ट्रांजिशन जनरेट होगा आपके माइग्रेटरी इंसर्शन में। वो कैसे देख लो, अब ये जो एंगल है ना, ये देखो ये कुछ इस तरह से है 90 एंगल। अब
ये जो एक्स ग्रुप है ये यहाँ पे डायरेक्टली माइग्रेट हुआ टुवर्ड्स दी वाई, तो ये ऐसे हुआ, तो देख लो 3 मेंबर रिंग बना। अब ये जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन सीस होनी चाहिए। अब देख लो यहाँ पे एम जो है एक्स माइग्रेट हुआ वाई की तरफ आया, तो ये लीनियर बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंट साइट आर गोइंग टू बी जनरेटेड। ना इन दिस वैकेंट साइट, तो पहले तो मैंने क्या किया, ग्रुप को माइग्रेट किया, बराबर, मतलब ट्रांसफर किया। आफ्टर द क्रिएटिंग द वैकेंट साइट, इन दैट वैकेंट साइट यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस द न्यू लिगैंड। अब ये लिगैंड यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे इंसर्ट हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेटिव इंसर्शन। मतलब फर्स्ट माइग्रेशन, सेकेंड विल बी इंसर्शन। अब इसके कुछ रूल होते हैं, वो हम लोग थ्रू आउट से मैकेनिज्म देखेंगे। अब यहाँ पे जो वाई ग्रुप होता है ना, वो स्टूडेंट हमेशा आपका अनसैचुरेटेड ही चाहिए। दीज आर द फर्स्ट कंडीशन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड नहीं। ये फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है। एक्स वाला जो ग्रुप होगा जो माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, वो एक्स वाला ग्रुप आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मीन्स आर एच बेंजीन एसिटल ऐसे वाले ग्रुप, तो इसमें आपके दोनों टाइप के कंपाउंड्स आ सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2 मेन क्राइटेरिया। अब देख लो एग्जांपल, ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, मैग्नीज कार्बोनिल कार्बोनिल CH3 ग्रुप। अब सबसे पहले क्या देखना है, मैंने पहले ही बोला था 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो या 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो आपको पहले चेक करना है, ठीक है। तो अब देख लो मैग्नीज जो होता है कितना है, 25, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 7 हुआ प्लस 1 2 3 4 5। सो कार्बोनिल कितने लिगेंड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5, 5 टू ये 10 हुए और इसका 1, काउंट कीजिए 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या होगा, पहले तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन मतलब एक ग्रुप आपका ट्रांसफर होगा। अब अगर यहाँ पर देख लो तो सप्ले, अब ये जो ट्रांसफर है यहाँ पे मैंने मिथाइल जो ग्रुप है इसको मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में, तो ये ग्रुप यहाँ पे जैसे ही माइग्रेट होगा यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी। तो ये देख लो ये पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू मेटल 1 1, तो ये हुआ आपका 1 1 इंसर्शन। ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने कार्बोनिल में, CH3 यहाँ पर आया, वैकेंट साइट हुआ। अब जो लिगैंड है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ, तो ये आपको मिला फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मिला आपको बिकॉज 16 इलेक्ट्रॉन क्या गिव्स यू वेरी इजीली रिएक्शन, तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट। और अगेन आपको यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब मेटल के जो भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नंबर होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं। सो दिस इज हाउ यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट। बट अभी ये जो इंसर्शन इट इज नॉट सो ईजी कि मतलब मैंने कोई तो ग्रुप लिया उसको उठाया और मैंने डाल दिया। अगर ये इतना ईजी होता तो ये नेट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते डेफिनेटली। अब इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, स्टूडेंट वही भूल जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड द फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पे आपको ना ये 2 चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ना, यहाँ पे एक कुछ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, दैट विच ग्रुप विल बी माइग्रेट फर्स्ट। मान लो अभी एक ही स्ट्रक्चर में यहाँ पे इथाइल भी है, मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देन विच ग्रुप माइग्रेट विल बी फर्स्ट। तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, सो दैट यू शुड फर्स्ट रिमेंबर। अगर आपके ग्रुप में टर्शरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इथाइल है, मिथाइल, तो सबसे पहले कौन जाएगा माइग्रेटरी में, टर्शरी ब्यूटाइल, फॉलोड दैट आइसोप्रोपाइल, followed that ethyl and followed that methyl. So these are the actually migratory train means aptitude. तो ये आपको याद कैसे भी हालत में, किसी भी हालत में याद रखना है फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। अब सेकेंड जो चीज़ है इंसर्शन और माइग्रेशन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, माइग्रेशन करना है। तो माइग्रेशन के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, दैट व्हेन आयोनिक लिगैंड moves towards the neutral ligand then it is called the migration। बट आपने गलती से भी क्या किया, न्यूट्रल जो लिगैंड होता है उसको मूव किया टुवर्ड्स द आयोनिक लिगैंड, तो आप पहले क्या करोगे, इंसर्शन करोगे, माइग्रेशन नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना माइग्रेशन और इंसर्शन में बच्चों का मिस्टेक होता है। तो ये चीजें ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, किसी भी हालत में आपको याद रखना ही है। माइग्रेशन का मतलब हमेशा याद रखो कि आपका आयोनिक जो लिगैंड होता है वही मूव्स होगा टुवर्ड्स द न्यूट्रल लिगैंड। आपने गलती से भी न्यूट्रल लिगैंड को मूव्स दिखाया टुवर्ड्स द आयोनिक लिगैंड, तो वो रिएक्शन आपका वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो माइग्रेशन पहला होने के लिए क्या करना है आपको, आयोनिक लिगैंड जो ये है वही आपका माइग्रेट होगा टुवर्ड्स द न्यूट्रल लिगैंड, देन दैट इज विल बी टेकिंग प्लेस द माइग्रेशन, ठीक है। एंड देन इंसर्शन। अब इंसर्शन में मैंने क्या बोला था, न्यूट्रल लिगैंड, मतलब ये न्यूट्रल लिगैंड मूव्स होगा इन बिटवीन द आयोनिक लिगैंड, सो वी कैन कॉल इज द इंसर्शन। सो दीज आर द डिफरेंस जो आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप सो यू शुड रिमेंबर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स, हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट, आई गिव द 1 एग्जाम्पल। अब मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम स्ट्रक्चर है, आपको पूछा है यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसाइड करना है माइग्रेशन किसका होगा, बराबर। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर माइग्रेशन में कार्बोनिल पे, तो ये तो मेरे न्यूट्रल लिगैंड है, आयोनिक कौन सा है, CH3। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, PPH3CO।
तो वैकेंट साइड कौन होगा, CH3 विल बी माइग्रेट होगा सबसे पहले तो आपका। अब CH3 यहाँ पे माइग्रेट होगा, मतलब वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, जो आपका ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे माइग्रेट होगा, बराबर। तो ये यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये वाला होगा, ये होगा आपका इंटरमीडिएट पार्ट। फिर सेकंड में क्या होगा, लिगेंड आपको क्या दिया है, CO13, ये आपको इंसर्ट करना है। तो ये इंसर्ट कहाँ पर होगा, फिर टेक अ लुक, क्रोमियम PPH3, ये ग्रुप को मैंने यहाँ पर लिया, C डबल बॉन्ड O CH3, देन कार्बोनिल ग्रुप विल बी इंसर्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंसर्शन। तो दिस इज आवर फर्स्ट यू सिलेक्टेड, तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें कैसे करना है माइग्रेटरी इंसर्शन। सेकंड देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिएक्शन पूरा दिया जाएगा, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड सजेस्ट द मैकेनिज्म। जनरली ये क्वेश्चन आपको पेट एग्जाम में या फिर MSc एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको भी मैकेनिज्म सजेस्ट करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होगा, आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या करना है, रिमूव करना है कोई तो एक ग्रुप। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मान लो CO है, अब CH3 CH3 बोथ द लिगैंड है, तो PPH3 हम लोग इसमें से पहले हटाएंगे CH3। तो यहाँ पर मान लो मैंने PPH3 को हटा दिया, ठीक है। तो ये हुआ वैकेंट साइड। अब मैंने ये क्यों किया, अब उसका भी एक क्राइटेरिया, एज सुन एज यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द फाइनल प्रोडक्ट, तो आप देखोगे आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सेपरेट आउट हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जा रहा है। तो ये वाले पार्ट में आप एक्सेस ऑफ CO दिखा रहे हो, बराबर, मतलब एक CO को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें जो पहला ग्रुप निकलेगा वो ये निकलेगा। तो आपको अप्रोच देखना है कि जैसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसी तरह से उसको आपका क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होगा, CO इंसर्शन होगा। तो CO जैसे ही यहाँ पे इंसर्शन होगा, बिकॉज आपको एक्सेस CO डालना है ना, तो कोबाल्ट CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट साइड में मैंने CO को इंट्रोड्यूस किया, बराबर। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका माइग्रेटरी इंसर्शन। अब माइग्रेटरी इंसर्शन में इसके पास अब यहाँ पे क्या होगा, आपको CO को इंसर्ट करना होगा, एक्सेस में करना है ना। तो यहाँ पे मैंने CO को डाला, तो देखो अब CO कहाँ पर जाएगा, कोबाल्ट CH3। अब ये CO तो आपने पहले ही इंसर्ट किया था, अब जो सेकेंड जो CO है हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसको CH3। तो देखो ये फर्स्ट इंसर्ट किया था, ये मैंने सेकेंड CO को इंसर्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द सेकेंड दिस, अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। आई एम गोइंग टू बी टेकिंग CO। तो यहाँ पे आपको जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन मतलब CO को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो अब फाइनल यहाँ पे मिलेगा आपको वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CO, यहाँ पे मिलेगा CO स्टार CO, और आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। तो आपका अगेन ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो, ये सारे पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग माइग्रेटरी इंसर्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बट आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द रिडक्टिव एलिमिनेशन। द सिंपल रीजन इज दैट whenever, okay, remember, whenever neutral ligand and the ionic ligand present on the metal, अब ये देखो neutral and the ionic ligand present on the metal and we want to remove, okay, one of the ligand, ठीक है। तो in that case first always remove the neutral ligand। ये यहाँ पे ट्रिक आपको याद रखनी है, फिर से बता रही हूँ। मान लो आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें से आपको एक लिगैंड को हमेशा रिमूव करना है सजेस्टेड मैकेनिज्म में, जिसमें आपके पास आयोनिक लिगैंड भी है और न्यूट्रल लिगैंड में है, तो इन दैट केस ऑलवेज रिमूव द न्यूट्रल लिगैंड फर्स्ट एंड देन रिमूविंग यू आर गोइंग टू बी फर्दर स्टार्टेड विद द रिएक्शन, ठीक है। अब सेकेंड थिंग यहाँ पर मैं आपको दूसरा बताऊंगी, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर कोई रिएक्शन है जिसमें आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन डिसाइड करना है, बीटा एलिमिनेशन, तो ऑलवेज रिमेंबर कर यहाँ पे रखिए एक चीज़, अगर आपका जो गिवन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हाईएस्ट है, तो दैट इज ऑलवेज फिजिबल और मोर फेवरेबल टूवर्ड्स द रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने की वजह से रिडक्टिव एलिमिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस। बट अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम विल बी द लोवेस्ट, देन देयर विल बी द बीटा एलिमिनेशन टेकिंग प्लेस। सो दैट्स व्हाई इन द रिएक्शन रिडक्टिव एलिमिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द मोस्ट फेवरेबल द रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो दिस इज हाउ आप यहाँ पे मैकेनिज्म को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो इन द बोथ द सेशन स्टूडेंट, द व्हाट इज द बीटा एलिमिनेशन,
then your second will be the what is the migratory insertion and what are their rules. I hope so you both the reaction you should understand. If you really understand all the things, but still if you have any doubt regarding this, definitely you should ask me. I definitely resolve your all the problems. Okay, so once again thank you so much watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us. And one more thing student, now homework जो हमेशा मैं देती हूँ, ठीक है. सो दीज आर द एक्चुअली वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच आई एम गोइंग टू बी प्रोवाइड यू, एंड दीज आर द लिगैंड. तो ये आपको माइग्रेटरी इंसर्शन का मुझे क्या दिखाना है, व्हाट विल बी द योर प्रोडक्ट एंड उसका मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म आपको मुझे सजेस्ट करना है. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा एंड व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. सो कमेंट में योर आंसर, ठीक है. एंड अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टूडेंट कमेंट मी, बिकॉज ऑफ योर कमेंट आई शुड अंडरस्टैंड कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू बी टीचर्स वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट.